امثال کی کتاب باب 3 میں آپ کے ساتھ آیت 5 اور 6 کو بانٹوں گا، جس کے بارے میں پر امید ہوں کہ آپ اس نوشتے کو پہلے ہی سے پڑھ چکے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ نے خود بھی ضرور کبھی نہ کبھی حوالہ دیا ہوگا۔ ہم جتنی زیادہ کتاب مقدس پڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ تیزی سے نوشتوں کو سمجھتے ہیں، اور آج میں تھوڑی گہرائی کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کے متعلق بات کروں گا جو خدا نے فرمایا ہے۔ میں اس حوالے کو تیز سے پڑھوں گا۔ امثال کی کتاب باب 3 آیات 5 اور 6 یہ بتاتی ہیں، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آئے خدا کے نام کو جلال دے۔ اے باپ، آج کی صبح ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے تاکہ تیرے کلام کی گہرائی کو بیان کر سکوں جو آج تو نے مجھے بخشا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری ساری کمزوریوں کو لے اور مجھ سے کلام کر، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے نہیں بلکہ فروتنی سے، تاکہ میں تیرے کلام کو گہرائی سے جان سکوں، ایمان سے لے کر سچے یقین تک۔ اے باپ، میں خداوند یسوع مسیح کے نام تیری مدد مانگتا ہوں، ہمیں برکت دے، اپنے لوگوں کے دلوں سے کلام کر، نہ صرف میرے ہونٹوں سے بلکہ یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند پر توکل کرو اپنے سارے دل سے اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ 5 اہم باتوں کا ذکر کروں گا۔ ان 2 آیات کے اندر 5 قسم کی وہ باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ توکل کرنے کی بابت آج میں ایمان کے متعلق بات نہیں کروں گا، بلکہ ہم آج توکل کے بارے میں بات کریں گے کہ فرق کیا ہے۔ توکل کے متعلق 5 باتیں جو ضروری ہیں۔ توکل کے نقطہ نگاہ سے، توکل کی بادشاہی کے متعلق، توکل کی بابت، دور اندیشی اور توکل کے اجر کی بابت، یہ سب کچھ ان 2 آیات کے وسیلہ سے جانیں گے۔ وہ بتانے کے وسیلہ سے شروع کرتا ہے، خداوند پر توکل کرو۔ اب جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ توکل کرنا اور ایمان رکھنا دونوں مختلف باتیں ہیں۔ ہم اکثر انہیں ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایمان یہ ہے جس کا ہم یقین کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں، جیسے میں اور آپ صلیب پر ایمان رکھتے ہیں کیا ہم متفق ہیں، لیکن صلیب ایک حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے۔ یہ سانس نہیں لیتی، یہ حرکت نہیں کرتی، یہ ساکن ہے، جبکہ توکل ایک مختلف بات ہے۔ یعنی توکل کسی شخصیت یا کسی کردار پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا باپ نے نجات کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے برے کو قربان ہونے دیا تاکہ منصوبہ مکمل ہو سکے۔ وہ ایک شخصیت ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ لاجواب ہے، وہ ساکن نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنا سارا بھروسہ توکل اس کی ذات پر کرتے ہیں، اس کے کردار پر، اس لیے توکل کا مطلب ہے کسی کی ذات، کسی کے کردار یا کسی کی شخصیت پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب ہم مسیحی بن کر خداوند کے ساتھ اپنے تجربات میں سے گزرتے ہیں، پھر ہم اس کے متعلق مزید باتوں کو سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور وہ کون ہے۔ اور اگر ہم خدا کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حوالے سے ترقی دے، تب ہم اس پر توکل کر سکتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اب بہت سارے مسیحی خدا پر توکل کرنا جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ توکل کیسے عمل میں آتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ خداوند پر توکل کرو۔ یہ توکل کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند پر توکل کرو۔ خدا کے بندے، آپ کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نجات کی قربانی کا منصوبہ نہیں جسے ہمارے پاس ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات اور خدا کی شخصیت پر بھروسہ کرنا ہے۔ آیا آپ اسے سمجھتے ہیں یا کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب یسوع مسیح بیتانیہ کو گئے اور انہوں نے مارتھا اور مریم سے کہا کہ پتھر کو ہٹوا دو، ہماری عقل اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ وہ 4 دنوں سے قبر میں رکھا ہوا مردہ تھا، لیکن یسوع کا کردار، اس کی شخصیت اور اس کی ذات پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے پتھر کو ہٹوا دیا اور انہوں نے اس معجزے کو پایا جس کے وہ منتظر تھے۔ بہت دفعہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس پر توکل کریں تاکہ نہ صرف ایمان کو گہرائی سے جان سکے بلکہ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں مکمل توکل اس پر کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم کہیں ڈاوا ڈول ہوں، بعض دفعہ ہمیں فائدے نہیں ملتے جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، کیونکہ ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔
یہ صرف ہونٹوں کی خدمت کی بابت نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ ہونٹوں کی خدمت کے متعلق نہیں ہے، یہ مسیح اعتراف کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خلوص دل سے توکل کرنے کی بابت ہے جو ہم اپنے خداوند کے وسیلہ سے رکھتے ہیں۔ یہ نوجوان مسیحی معلومات ہے جس کو بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی اگر آپ ماضی کی کہانی ابراہم کو یاد کرتے ہیں، خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ تیری نسل سے نجات دہندہ آئے گا۔ ابراہیم نے اس وعدے کو 25 سالوں تک جاری و ساری رکھا اور یاد رکھا۔ ان سالوں میں اس سے کہا گیا کہ وعدہ پورا ہوگا، وعدہ پورا ہوگا، اور پھر ایک دن وعدے کا فرزند اسحاق پیدا ہوا، اور خدا کے حضور ابراہیم نے لڑکے اسحاق کو 20-25 برس تک بڑا کیا۔ اور ایک دن خدا نے اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے اکلوتے بیٹے کو سارا اور اس سے لے کر کوہ موریا کے پہاڑ پر آ جا اور میرے حضور اس کو قربان کر دے۔ اب آپ خود کو ابراہیم کی جگہ پر رکھیں۔ اے خداوند، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں نے 25 سال تک انتظار کیا اور 20 برس تک اس بچے کو جوان کیا، اور وہ اس کی نسل سے وعدہ کیے گئے یسوع مسیح کے نسب نامہ سے تھا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر دلیل سے باہر بات ہے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ اور ابراہیم خدا کے ساتھ بڑی مدت سے چل رہا تھا، اس لیے اس نے اس پر توکل کیا اور اس کی شخصیت پر بھروسہ کیا، اور فرما برداری کرنے کے وسیلہ سے اس نے لڑکے کو لیا، کوہ موریا کے پہاڑ کی طرف چل پڑا، اور جو ہی اس نے اپنے ہاتھ میں چاقو لے کر اس پر چلانے لگا، چھری کو لڑکے کی گردن پر رکھ کر چلانے لگا تھا، تب خدا نے فرمایا اے ابراہیم اپنا ہاتھ لڑکے سے روک لے، اب صحیح نقطے کی طرف آئے۔ اس لیے اس نے خود سے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن میں اس پر توکل کرتا ہوں جس نے وعدہ کیا، میں اس کی ایمانداری، اس کی شخصیت پر توکل کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی عام مسیحی ایمان کی مانند نہیں ہے جس میں سے آپ ہر روز گزرتے ہیں، بلکہ یہ خاص توکل ہے کہ خدا کون ہے۔ وہ بہت اچھا خدا ہے۔ یہ ایسے نہیں جو مسیحی کہہ رہے ہیں، وہ اچھا خدا ہے، وہ سب چیزوں کو اچھا کر دیتا ہے۔ خداوند پر توکل کرو۔ نقطہ نمبر 2، توکل کا درجہ، اس کا معیار، اپنے سارے دل سے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کا کوئی بھی حصہ جس میں غیر یقینی پائی جاتی ہے اس کے نزدیک نہیں چلے گا۔ میں نے اور میری بیوی نے چند ہفتے پہلے ایک بڑی خریداری کی، ایک بڑا فریزر میں سٹینڈ خریدا جو شاید $2000 کا تھا، جسے ہم نے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ سے خریدا تھا۔ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کا بنا ناپسند کرتا ہوں، اور میں تمام بلوں کو جمع تفریح کر رہا تھا، اور میں ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے طے کیا کہ مہینے کی 15 تاریخ تک میں سب بقایا جات ادا کر دوں گا، یعنی پورے $2000۔ بے شک ہر چیز رہتی ہے تو رہ جائے، لہذا میں نے ہر چیز کو ترتیب دے کر کہا ٹھیک ہے۔ جب ادا کرنے کا صحیح دن آیا تب خدا نے مجھ سے ایک بڑے ہدیے کو دینے کے لیے کہا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، میں پہلے ہی سے طے کر چکا تھا کہ میں اسے ادا کروں گا، پھر ہر چیز بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے چرچ کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ چرچ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز تو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ پھر کیوں خدا چاہتا ہے کہ میں اس پر توکل کروں؟ لہذا میں نے اس پر توکل کرنا چاہا یا نہ چاہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو بتایا، اور جب پہلی دفعہ ایسا ہوا تو میں نے سوچا ٹھیک ہے، اگر اے خدا تو جانتا ہے، جب خدا آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ پر بوجھ ڈالتا ہے۔ بس پہلے دن تو میں نے اس بات پر غور نہیں کیا، میں نے سوچا اگر اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے کل یاد دلانا، اور پھر اگلے دن اس نے مجھے دوبارہ چھوا۔ لہذا میں نے اپنی بیوی سے کہا خداوند کہہ رہا ہے کہ ہم ایک خطیر رقم ہدیے میں دے دیں، خاص ہدیہ، خاص رقم کے طور پر۔ لہذا اس نے مجھ سے کہا اگر خداوند ہم سے کہتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں یہی توکل ہے، لہذا مجھے اسے سمجھنے کی قطعی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں پہلوانوں کی طرح مذاکرات کی ضرورت ہے۔ میں توکل کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ مجھے تیری صداقت پر توکل ہے۔ کیا میں اس بات کو صحیح بتا رہا ہوں؟ توکل ایک کسی خاص شخص خدا باپ اور اس کی راست بازی پر اعتبار کرنا ہے۔ لہذا نوشتہ فرماتا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ اب اس نے بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ پر شک نہ کیا۔ وعدہ کسی بھی شخص سے بڑھ کر نہیں ہوتا جس نے وہ وعدہ کیا ہو۔ اگر آپ بدماشوں سے، بددیانت شخص سے بات کر رہے ہیں تب اس کا وعدہ قابل قدر نہیں ہوتا جس پر قائم رہا جا سکے، لیکن جب آپ کے پاس کسی کی صداقت ہوتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یہ ٹھوس ہے،
मैं ऐसे शख्स पर तवक्कुल कर सकता हूं। मैं ब्रदर जैस्पर के मुतल्लिक सोच रहा था। ब्रदर जैस्पर तकरीबन 40 बरस के हैं या 40 बरस के लगभग हैं। हम पीछे मासी में तकरीबन 20 बरस पहले देखते हैं जब हम दोनों मिले थे। उन सालों के दौरान हम हमेशा एक दूसरे के आसपास थे और मैंने उनकी शख्सियत से सीखा, मैंने उनके दिल से सीखा। आपके भी कई अच्छे दोस्त हो सकते हैं जो बहुत करीबी होंगे और आप उनके आसपास काफी अरसे से मौजूद होंगे। आपने सीखा होगा कि अगर वो कभी गलती भी करते हैं तो मैं जानता हूं कि शायद ये उनसे गलती से हुआ होगा, क्योंकि मैं उनकी शख्सियत से वाकिफ हूं कि वो एक सच्चे इंसान है। खुदा कभी गलती नहीं करता है, खुदा कभी नहीं गिरता है। और जिस हम अपने खुदा पर तवक्कुल करते हैं, सुनिए, ये ऐसा तवक्कुल नहीं है कि मैं अपनी अगली आमदन के चेक के मुतल्लिक बात कर रहा हूं। नहीं, आप अपनी नौकरी पर अगले चेक के लिए तवक्कुल करते हैं। हमें सीधी बात की तरफ आना चाहिए। जब आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं, अय्यूब नबी क्या फरमाते हैं? अय्यूब नबी अपनी सारी औलाद को खो चुका था, फिर उसकी अपनी सेहत खराब हो गई, उसके पूरे जिस्म पर फोड़े हो गया, तक अय्यूब की बीवी ने अय्यूब से कहा तुम बेवकूफ हो, अपने खुदा पर लानत करो और मर जा। अय्यूब अपनी हर चीज को खो चुका था, लेकिन फिर उसके बातन में कहीं ना कहीं तवक्कुल मौजूद था। उसने कहा ऐ खुदावंद, बेशक तू मुझे कत्ल कर दे, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। आप उस वक्त तक खुदा पर तवक्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक वो आपके पूरे जिस्म को शिफा ना दे दे। आप उस वक्त तक खुदा पर तवक्कुल नहीं करते जब तक आप नहीं कहते कि खुदावंद अगर मैं मर गया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा तवक्कुल तुझी पर। इस बात को आप हर रोज मसीह ईमान से बरक्स देखते हैं। आप में से अक्सर मुझे हैरत से देखेंगे जब मैं मरने की बात करता हूं, हत्ता कि आपके बाल एक तरफ को झुक जाएंगे, आप फिर भी मरने जा रहे हैं। मैंने खुदा पर तवक्कुल करना तय किया है, लिहाजा तवक्कुल का दर्जा आपके दिल पर निसार करता है, जिसका मतलब है कि आप उस पर तवक्कुल करते हैं। अपनी नौकरी समेत, आप अपने खानदान समेत उस पर तवक्कुल करते हैं। आप अपनी शादी के वसीला से उस पर तवक्कुल करते हैं। आप अपने बच्चों की परवरिश के तरीके की बदौलत तवक्कुल करते हैं। आप अपनी दौलत के साथ उस पर तवक्कुल करते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू समेत उस पर तवक्कुल करते हैं। अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर। आधे दिल के साथ तवक्कुल करने का मतलब है कि आप खुदा पर बिल्कुल तवक्कुल नहीं करते हैं। आप अभी इस बात के बाद तवज्जो करेंगे कि लफ्ज जुड़ते हैं, मतलब यह कि दोनों हिस्सों को मिलाते हैं, यानी लफ्ज के दोनों सिमतों को मिलाकर मुकम्मल ख्याल को पेश करते हैं। अपने सारे दिल से खुदा पर तवक्कुल कर और फिर दूसरी तरफ अपनी फहम पर तकिया ना कर। यह एक बात है, आप मुकम्मल तौर पर खुदा पर तवक्कुल नहीं कर सकते हैं जब आप अपनी फहम पर भी तकिया कर रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात खुदा आपको ऐसी बातें बताता है जो समझ में नहीं आती हैं। खुदा ने एक बार मुझसे कहा, जब मैं जवान शख्स था, अच्छे पैसे कमा रहा था, बहुत खुश था, तब मेरा साथ ये जबरदस्त वाक़या पेश आया। जब मैं यीशु मसीह के वसीला से निजात याफ्ता हुआ था, तब खुदा ने मुझसे कहा कि जाओ और अपनी साबका बीवी से शादी कर लो। बाज़ औक़ात वो आपसे ऐसी बात करता है जिसका आपके नजदीक कोई मानी नहीं होता, लेकिन अगर आप उस पर तवक्कुल करते हैं, आप उस पर तवक्कुल करते हैं, अगर आप उसकी सदाकत पर तवक्कुल करते हैं जिसने आपको बचाया है, आप अपनी साबका बीवी के पास जाएं। अगर ऐसी सूरत हाल है, अगर वो आपसे ऐसा ही कहता है, तब कहें खुदावंद ने मुझसे ऐसा कहा है, हमें दोबारा शादी करनी चाहिए। और फिर मेरी साहब का बीवी ने कहा मज़ाक का कहजा, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा है हमें दोबारा शादी करने की ज़रूरत है। और हम शायद पहला जोड़ा होंगे जो इससे पहले आपस में ना खुश थे और ना ही बाद में कभी खुशायन बातें होती थी। ये बिल्कुल इसी तरह था। आमीन। हम हमेशा झगड़ते थे, लेकिन हम दोनों बातनी तौर पर जान चुके थे कि खुदा ने कहा कि हम दोबारा शादी कर लें। और बेशक पहले चंद साल बिल्कुल इसी तरह थे। मुझे नहीं मालूम, अब शायद सालों बीत चुके हैं, अब ये पहले से अच्छा और अच्छा हो चुका है। आप कभी भी अजर पा नहीं सकते जब तक आप उस पर तवक्कुल नहीं करते हैं। अपने सारे दिल से उस पर तवक्कुल करो और अपनी फहम पर तकिया ना करो। ये बताती है कि कितना मुश्किल है, ये कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर जो इब्राहिम ने किया, किताब मुकद्दस बताती है, उसने अपने बदन को मुर्दा ना जाना। इसहाक की पैदाइश की बाबत जब उसने 25 बरस तक खुदावंद के वादे को कायम रखा, नविश्ता बताता है कि उसने अपने मुर्दा बदन का लिहाज ना किया। इसका मतलब है कि उसने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अब वो बच्चों को पाने के काबिल नहीं रहा। सारा भी ज़ईफ होने के सबब से बच्चों को पैदा करने से कासिर है, और बेशक सारा ने अपनी जवानी में बच्चों को पैदा ना कर सकी जब वो जवान थी, और तब फिर उसने इस बात पर गौर ना की बल्कि वादे पर नजर की। ये अच्छी बात है। हर एक चीज जो अब हमारी सियासी दुनिया में हो रही है और हमारी मेडिकल दुनिया में, सब कुछ बेमानी है। मैं इसके जिक्र को भी पसंद नहीं करता हूं, बल्कि मैं सिर्फ उस खुदा के वादों को देखता हूं। मैं सिर्फ खुदा के वादों की तरह देखता हूं, और यही है जिसकी बाबत मैं अपने लिए दावा करता हूं। लिहाजा
काबिल तवक्कुल लम्हात डिमांड करते हैं कि आप अपने बदन हवाले कर दें। मैंने अपने बदन को हवाले कर दिया और अपनी साहब का बीवी से शादी कर ली। मैं अपने पूरे बदन और अपनी सारी जिंदगी को हवाले करने के लिए तैयार हूं। मेरी आमदन ने मुझे कानूनी मुआहदे में बांध दिया और मैं उसके साथ कायम रहूं, जबकि पहले ही तलाक याफ्ता हो चुके थे, और अब उसके साथ रहूं और मौत के अलावा कोई चीज हमें जुदा ना करे। ये महज ऐसा ईमान नहीं है कि मैं एक बेहतर नौकरी हासिल कर लूंगा या मैं नौकरी के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मैं ऐसी बातों के मतलब बात नहीं कर रहा हूं। मैं सदक, मीसक और अबनजू के बारे में बात कर रहा हूं, जो जलती हुई आग की भट्टी में डालेंगे। और जब बादशाह का फरमान जारी हुआ तो उसने फरमाया कि सब लोग इब्रानियों के खुदा की साइश करें। उसने कहा इसलिए कि ऊपर देखो, उन्होंने अपने बदन उसके हवाले कर दिए। उन्होंने अपने बदन उसके हवाले कर दिए। उन्होंने बादशाहत के कानून को बदल डाला क्योंकि उन्होंने अपने बदन हवाले कर दिए। तो अक्ल आपको हरगिज इजाजत नहीं देता कि आप खौफ में चले। नहीं, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कितनी दफा लोगों से कहा कि खौफ मत करो, डरो मत। लिहाजा अगर आप खौफ में चलते हैं तब आप अपनी जिंदगी में हर एक वजह के लिए खौफ में रहते हैं। आप तवक्कुल के वसीला से चल नहीं रहे हैं। नहीं, आमीन। आए अभी अपनी अकल फहम की बात करते हैं, जो कि फहम की दुनिया कहलाती है। फहम की दुनिया का मतलब है कि ऐसा शख्स जो अपनी अकल पर भरोसा नहीं करता है। फहम का दायरा कार, फहम का दायरा कार यह फरमाती है अपनी सब राहों में उसको पहचान। यहां लफ्ज सब पर तवज्जो करें, सीन बे सब। इसका मतलब है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपनी सब राहों में उसको पहचान। इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं कि सिर्फ अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों में ही खुदा को पहचाने, बल्कि इसका मतलब है कि जिंदगी के छोटे से छोटे मामलात में भी खुदा को पहचाने। और जब आप छोटे मामलात के मतलब गौर करते हैं, या हो सकता है कि ये काफ़ी हो, या फिर जो फैसला आप करते हैं अपनी सोच के मुताबिक, फिर ये आपका ज़ाती फैसला बन जाता है। जब मैं एक ठेकेदार था, दरअसल एक वक्त था जब मैं मुलाजिम था आईटी के शोबा में, जब मैं एक कंपनी इंगरसोल रेंट के लिए काम करता था, और मैं एक दिन थक कर सोच रहा था कि वो मुझे इतनी ज़्यादा माकूल तनख्वाह नहीं देते हैं, और अगर मुझे काफ़ी तनख्वाह नहीं मिलती है फिर मुझे मज़ीद किसी और नौकरी की तलाश करनी चाहिए। और मैंने ऐसा ही किया जो मुझे मिल गई, और यकीनन पहले से ज़्यादा मुनाफा बख्श थी, और मैं एक अच्छा प्रोग्रामर था। मेरा मतलब है उन्हें मेरी ज़रूरत थी। फिर मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कहा मैं 2 हफ्तों के बाद मुलाजमत छोड़ दूंगा। और उनके मैनेजर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि लिंकन, तुम एक अच्छे काम करने वाले हो, हमें आपकी यहाँ बहुत ज़रूरत है। और मैंने अपना इस्तीफ़ा उसके सामने रख दिया और उनको बताया कि दूसरी कंपनी मुझे इससे ज़्यादा पैसे दे रही है, इसलिए मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। सुनो, मुझे नहीं मालूम कि दूसरी कंपनी ने आपको क्या ऑफर दिया, लेकिन हम उससे ज़्यादा आपको देंगे, चाहे वो कैसी भी ऑफर क्यों ना। अब इसके मतलब सोचो। दर हकीकत उसने एक खाली चेक अपनी मेज़ के सिरे पर मेरे सामने रख दिया और कहा कि जितनी चाहो रकम लिख दो, हमें आपकी यहाँ ज़रूरत है। और बेशक पहली दफ़ा मैं कुर्सी पर आराम से बैठकर सोचने लगा, वाह ये तो ज़बरदस्त है। फिर मैंने महसूस किया रूहुल कुद्दस ने मेरे दिल को मुलामत किया, सीधे रास्ते पर रहो। मैनेजर के दफ्तर में बैठे हुए उसने मुझसे कहा कि ऐसा मत करो, अगली नौकरी के लिए आगे बढ़ो। देख खुदावंद, मेरे सामने मेज़ पर खाली चेक रखा है, यह उम्दा होगा कि मैं इस चेक में बड़ी रकम भर दूं। देखिए ये सही रहेगा, लेकिन देखिए जब आप खुदाम पर तवक्कुल करते हैं अपनी सब राहों में, अपनी तमाम राहों में, फिर आप उसे अपनी सब राहों में पहचाने। और जैसे मैंने बताया कि मैंने उसको पहचाना और उसने मुझे बताया कि मत उठाओ, और मैंने ऐसा ही किया। मैं दूसरी कंपनी में चला गया और 6 महीनों के बाद इंगरसोल रेंट कंपनी छोड़ दी गई। और अंदाजा करें कि सबसे पहले इसको किसने छोड़ा? बड़ी रकम वाले लोगों ने, क्योंकि उसके बड़े लोग यही कुछ थे। उन्होंने उनकी कटौतियां शुरू कर दी। लिहाजा अगर मैंने खुदाम पर तवक्कुल ना किया होता तब मैं भी इंसानी वजह के सबब से उसको छोड़ता। भाई आप अच्छी रकम लें जिसके लिए आप काम करते हैं, उसको पहचाने अपनी सब राहों में। यही एक दायरा कार है जिसके तहत तवक्कुल काम करता है। जब आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं, ना सिर्फ अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों के दौरान, बल्कि आपको अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में भी उसको पहचानना चाहिए। क्या आप दाऊद को जानते हैं? वो 400 जवानों के साथ घोड़ों पर सवार था। यही जवान कई सालों तक उसके साथ ही रहे, और वो जब घर वापस सिकलाज में आए, ओह मेरे खुदाया, पूरा शहर आग से जा रहा था, और उससे भी बढ़कर तमाम बच्चे और औरतें कैदी करके वो ले गए, और दाऊद समेत
बाकी बाइबल बताती है सभी साथी रोने और चिल्लाने लगे अपने खानदानों के लिए। उनका सब कुछ, घर बार, बच्चे, औरतें, सब लुट चुका था। और ये 400 जवान जिन्हें दाऊद ने लड़ाई लड़ना सिखाया था, वो भी कहने लगे कि दाऊद को संसार किया जाना चाहिए। अगर वो हमें यहाँ से ना लेकर जाता, हमारे लोग कभी भी कैदी ना बनते और ना हमसे वो दूर जाते। हमारा सब कुछ इसी की वजह से चला गया है, और इसे मार डालें। इतने लोग जानते कि दाऊद पर कितना दबाव बढ़ा होगा। उसका अपना दिल भी टूट चुका था, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे भी जा चुके थे। लेकिन नविश्ता बताता है कि दाऊद ने ऐसी सूरत हाल में खुदावंद से पूछा, मतलब कि उसने काहिन से कहा कि मेरा अफूद मेरे पास ले आओ, क्योंकि मैं खुदावंद से पूछूंगा, मैं खुदावंद को पहचानूंगा, खुदावंद को जानूंगा और खुदावंदी से पूछूंगा क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए या हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। अब मैं तस्लीम करूंगा कि अगर ये मैं होता, सवाल भी ना पूछता। आप जानते हैं, कोई कह सकता है कि आओ चलें उन शैतानों का पीछा करें ताकि हम जाकर उनको मारे, लेकिन दाऊद ने वक्त का इंतजार किया ताकि खुदा को पहचाने, और खुदा ने उसको जाने के लिए उसकी रहनुमाई की। ऐ मुकद्दसो, ये बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं आप निजात याफ्ता है, मैं जानता हूं आप सब बड़े अक्लमंद हैं, हम में से ज्यादातर के पास माकूल दलीलें हैं, लेकिन ये काफी नहीं है जिनके वसीला से हम खुदा पर तवक्कल करने का अजर पा सकें। तवक्कल का इन्हिसार खुदावंद पर तवक्कल करने का नाम है, और फिर बिलाखिर तवक्कल का अजर है जो यहां है, वो तेरी सब राहों में रहनुमाई करेगा। अब हर कोई कहता है कि वो रूहुल कुद्दस के वसीला से रहनुमाई पाता है, जबकि हकीकत इसके उल्ट है। हर एक दावा करता है कि रूहुल कुद्दस ने मुझे बताया है कि ये करो वो करो। जो काम वो आसानी से कर लेता है तो वो कहता है हाँ, ये रूहुल कुद्दस की बदौलत है। लेकिन क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि रूहुल कुद्दस ने बिल्कुल सही तौर पर काम किया है? क्या आप किसी भी काम के नतीजे से पहले कह सकते हैं कि खुदा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था? क्योंकि अगर खुदा ने ऐसा करने को कहा था तो जरूर ये आपके फायदे के लिए होगा। लिहाजा तवक्कुल का अजर यह है कि वो हमारी सब राहों में रहनुमाई करता है। इसलिए कि अगर आप पूरे दिल से उस पर तवक्कुल करते हैं और अपनी फहम पर तकिया नहीं करते हैं, अगर आप अपनी सब राहों में उसको पहचानते नहीं है, फिर वो आपकी रहनुमाई का जिम्मेदार नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे मसीहों के पास रूहुल कुद्दस की रहनुमाई नहीं है। सबसे जरूरी सवाल जो मैंने कई सालों से मसीहों की बदौलत पाया है, मुखलिस मसीही खुदा से मोहब्बत करते हैं। आप कैसे मालूम करते हैं कि यही खुदा की मर्जी है? आप कैसे मालूम करेंगे कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो खुदा की मर्जी से है? आप में से कितने लोगों ने खुद से कभी ऐसा सवाल किया है, मैं कैसे पुरयकीन हो सकता हूं? आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पुरयकीन हो सकते हैं कि आप खुदा की मर्जी में है। यहां जानिए, खुदावंद पर तवक्कुल करो, अपने सारे दिल से अपनी फहम पर तकिया करना छोड़ दो। सुनिए, जब आप खुदा पर तवक्कुल करने के साथ अपनी फहम को शामिल कर लेते हैं, यह बिल्कुल ऐसे आदमी की मानद है जिसका एक पांव पत्थर पर दूसरा रेत में धंसा हुआ। आप बिल्कुल जल्द ही ऐसे आदमी की मानद रेत में धंस जाते हैं जिसके दोनों पांव रेत में हों। आपको अपने दोनों पांव पत्थर पर रखने होंगे। खुदावंद पर तवक्कुल करें और अपनी फहम पर तकिया ना करें, और फिर बढ़ते हुए उसको पहचाने, उससे पूछें। हम पाते नहीं है क्योंकि हम मांगते नहीं है। अपनी सब राहों में उसको पहचानिए। साज वाले भाई आगे आ जाए। अपनी सब राहों में उसको पहचानिए, और उसका वादा ज़बूर 3 में है, वो करेगा। वो नहीं बताता है कि शायद करेगा, बल्कि लफ्ज करेगा मजबूत रास्ता है जो आपको कह सकते हैं इंग्लिश जुबान में वो ऐसा ही करेगा, वो तेरी रहनुमाई करेगा। अगर हम खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो हमें अपने ईमान में खुश होना चाहिए। यह शानदार है, हमारा ईमान है, हमारे पास ईमान है, लेकिन मैं उसके साथ बड़े अरसे से चल रहा हूं। मैं उसकी मर्जी को समझता हूं, मैं उसके किरदार को समझता हूं। हत्ता कि जब कोई ऐसी बात जिसकी मुझे समझ नहीं आती, या खुदावंद क्या सोच रहे हैं, वो क्यों इस तरीके से रहनुमाई नहीं करता है, या वो बात है जो मैं खुदा के बारे में समझता हूं। वो सब काम अच्छे करता है, वो अपनी बादशाही में कोई गलती नहीं करता है, और अगर जब वो कुछ करता है और मैं उसके साथ मुतफिक नहीं हूं, फिर मैं ही गलत हूं। वो बिल्कुल सही है। इसीलिए यही वजह के बतौर मसीह हमें समझदारी की जगह पर आना चाहिए ताकि हम उस पर तवक्कुल कर सकें। अपने सारे दिल के साथ अपनी फहम पर तकिया करना बंद करें। अपनी जाती फहम के साथ खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद की तमजीद हो। आए अपने सरों को झुकाएं इस कमरे में। आए बाप, तुझसे
ऐ बाप हम तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी रहनुमाई की और हमें जिंदगी बख्शी। तूने हमारी रहनुमाई ऐसे हिस्सों की तरफ किया जहां हम गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हम निशान से हट जाते हैं। अब ऐ खुदा थोड़ा बुलंद होने के लिए हमारी हौसला अफजाई कर, ताकि हम तेरी हसूरी में और गहराई के साथ चल सके। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं जो कुछ तू करता है हमारी जिंदगियों में। अब ऐ खुदा हम तेरी मिन्नत करके कहते हैं कि तू हमारे अब ऐ खुदा हम तेरी मिन्नत करके कहते हैं कि तू हमारी हर रोज मदद कर। ऐ बाप ना सिर्फ हम तुझ पर सारे दिल से तवक्कुल करें, बल्कि हम सब कुछ अपने दिल के साथ करें। ऐ खुदावंद हम अपनी जाती फहम के बगैर सब कुछ करें, या अपनी जाती दलीलों की बदौलत अपनी स्कीमों में कायम न रहें। हम तुझे अपनी सब राहों में पहचानते हैं। आए हम सब अपने कदमों पर इस कमरे में खड़े हो जाएं। आए अपने खुदा के पास आए। बेशक हम सब की जिंदगी में चैलेंजेस हैं, ऐसे फैसले हैं जो करने वाले हैं। हम सबके पास रहनुमाइयां हैं जिन्हें सही सिमतों की जरूरत है। आप अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर सकते हैं। खुदावन से कहें, ऐ बाप तुझ पर तवक्कुल करने में हमारी मदद कर, और वो सब कुछ है जिसके मुतल्लिक मैं सोच रहा हूँ। तवक्कुल करने में मेरी मदद कर ताकि अपनी जाती फहम पर तकिया ना करूं, अपनी मर्जी को मेरे दिल में जाहिर कर दे। आए हम सब खुदावंद के पास आ जाएं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो।